Yes, sir. ओके, Yes, sir. फिर से बोलूं? दिस इज द Yes, sir. एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट विच इज रेफर टुवर्ड्स द प्राइमरी साइड। ठीक है, हम क्या करते हैं, हमने ये देखा था कि दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द ट्रांसफार्मर विच इज हैविंग द प्राइमरी साइड एज वेल एज द सेकेंडरी साइड। ओके, तो ये जो प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड का एक सर्किट था, हमने इनमें क्या किया था, क्वांटिटीज को रेफर किया था सेकेंडरीज और प्राइमरी साइड में। फर्स्ट सपोज वी वांट टू रेफर दिस R2 टुवर्ड्स द प्राइमरी, तो क्या हुआ था, R2 डैश हुआ था। सिमिलरली इंडक्ट, तो आपका जब R2 इस तरफ रेफर होगा तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 डैश, तो यू विल गेट द R equivalent 1. Similarly, when we refer the X2 towards the primary, it becomes X2 dash, the equivalent is X equivalent 1. So the impedance is Z equivalent 1. Similarly, we refer all the quantities of the primary to the secondary side or secondary to the primary side. Okay, so how to draw the equivalent circuit of these quantities when we refer the sides? So first, exact equivalent circuit refer towards the primary side. So when we refer these quantities, means this is R2 dash, X2, R2, we want to refer R2, X2, I2, V2 and ZL. So when we refer these quantities towards the primary side, तो ये क्या हो जाएंगे, this is your R2 dash, this is your X2 dash, I2 dash, V2 dash and ZL dash. तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या होगा, आपने R2 को प्राइमरी साइड में ले आए, X2 को भी प्राइमरी साइड में ले आए, करंट को भी ले आए, लोड इम्पीडेंस को भी ले आए और वोल्टेज को भी ले आए. So when we refer all these quantities towards the primary side, this is the equivalent circuit we have. अब सेकेंडरी साइड नहीं है यहाँ पर, है ना, क्यों, क्योंकि हमने सेकेंडरी की सारी क्वांटिटीज को क्या किया, हमने प्राइमरी की साइड में रेफर कर दिया. ओके, सो this is the circuit, equivalent circuit when we refer the quantities towards the primary side. This is the exact equivalent circuit. We have an approximate equivalent circuit referred to primary side. What is the difference between these two? ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, and this is the approximate. The first one is the exact and second one is the approximate equivalent circuit. What is the difference between these two? आई नॉट करंट वाला जो सर्किट था वो शिफ्ट हो गया. I नॉट इज शिफ्टिंग, शिफ्टेड क्यों शिफ्ट कर सकते हैं हम लोग, या क्यों किया हमने, बिकॉज दिस I नॉट इज हैविंग अ वेरी स्मॉल amount of the current which is only 3 to 5% of the full load current. So यदि हम इसको यहाँ शिफ्ट भी कर देते हैं तो हमारे नेटवर्क पर कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है. और R इक्विवेलेंट निकालते समय, कौन सा R इक्विवेलेंट 1 निकालते समय, we add these two resistances and these two inductance directly. That's why we refer or we transfer this I naught quantities before the resistance and the inductance of the primary side. ठीक है, so this is the approximate equivalent circuit referred towards the primary side. बाकी सारी quantities as it is हैं, सिर्फ हमने क्या किया है, I naught वाले जो सर्किट है, इस I naught में क्या क्या है देखेंगे यहाँ पर, इसके आगे हमें जरूरत पड़ेगी. This I naught is having the R naught and the X naught. Okay, this is the IW current flowing through this, and this is the magnetizing current flowing through this reactance, and this is the current flowing through this resistance. So we refer these quantities to this side. Now this is the approximate equivalent circuit of refer towards the primary side. Now second one is the approximate equivalent circuit referred towards the secondary side. ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, सेकेंडरी साइड में रेफर कर रहे हैं. मतलब हमने क्या क्या रेफर किया, we refer R1, we refer X1, we refer I1, we refer V1,
वी रेफर दीज क्वांटिटीज टुवर्ड्स द प्राइमरी साइड। ठीक है, तो जब हम इनको रेफर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये R1 डैश X1 डैश I1 डैश V1 डैश। ओके, तो ये वैल्यूज यहाँ पर रेफर हो जाएंगी। और क्वांटिटी कौन सी है हमारे पास, IW, IM, R0, X0 और I0। I0 कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर I0 होगा, मैं उसको ड्रॉ करना भूल गया हूँ। दिस इज I0 here, I0 डैश। तो ये सारी क्वांटिटीज भी क्या हो जाएंगी, these are the quantities dash। So when we refer these quantities towards the secondary side, पहले वाले में आपने देखा होगा क्या किया था, मैंने दोनों को ड्रॉ किया था, इसमें दोनों को ड्रॉ नहीं किया। क्या किया इसमें, इसमें दोनों को ड्रॉ करने के बदले मैंने इसको डायरेक्ट इक्विवेलेंट लिख दिया है। ठीक है, तो क्वांटिटीज हमने ड्रॉ करी और उसके बाद क्या किया, उनको आप पहले अलग अलग लिख के उसके बाद भी इसको ऐड करके R इक्विवेलेंट टू और X इक्विवेलेंट टू निकाल सकते हैं। सो व्हाट इज R इक्विवेलेंट टू और X इक्विवेलेंट टू, वी ऐड दीज R1 डैश प्लस R2, X2 plus X1 dash। So this quantities give you the R equivalent to X equivalent to, this is the I1 dash, we refer this side, okay, and these are the other quantities we refer towards the secondary side। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान, ये देखिए लोड में हमने कोई चेंज नहीं किया है क्योंकि ऑलरेडी सेकेंडरी साइड में था। I2 करंट को कोई चेंज नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी सेकेंडरी साइड में। V2 में कोई चेंज नहीं किया बिकॉज इट्स ऑल्सो ऑन द सेकेंडरी साइड। बट यहाँ पर आप देखेंगे प्राइमरी साइड में क्या था, we are applying the voltage V1 on the primary side, and what about the secondary side, we have a E2 on the secondary side। okay, याद होगा आपको जब मैंने स्टार्टिंग में हम पढ़ रहे थे तो हमने क्या बोला था, V1 is equal to E1, because of V1 we are having the E1, and because of E2 we are having a V2 in ideal case। ये बात की थी, मींस सेकेंडरी साइड में ईएमएफ इंड्यूस जो हो रहा है उसकी वजह से हमें एक आउटपुट वोल्टेज मिलता है, और प्राइमरी साइड में जो हम आउटपुट जो इनपुट वोल्टेज देते हैं उसकी बिकॉज ऑफ दैट वी गेट द ईएमएफ इंड्यूस इन द प्राइमरी साइड। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे E2 एक सोर्स की तरह काम कर रहा है सेकेंडरी के लिए। सो दिस इज द अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टुवर्ड्स द सेकेंडरी साइड। Now simplified equivalent circuit refers towards the secondary side। अब हमने क्या किया, because we know that the value of this quantity is very small as compared to the whole circuit, so we neglect this। So when we neglect this, what you will get, हमारे पास क्या बचा, R equivalent to X equivalent to I2 V2 ZL, और यहाँ पर आपका एक और चीज क्या आ जाएगी, that is I1 dash। ठीक, so this is the simplified circuit referred towards the secondary side। So these are the circuits we have when we refer primary to secondary or secondary towards the primary। clear है? Any doubt? Yes please। क्लियर है सर। clear है? So now we draw the फेसर डायग्राम ऑफ दिस सर्किट। ठीक है, खाली इस सर्किट का फेसर डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे। तो फेसर डायग्राम में जब हम ड्रॉ करेंगे तो कहां से स्टार्ट करें, इसमें हम लोग कहां से स्टार्ट कर सकते हैं, E2 से क्या, Z से, पहले 5 से शुरू करते हैं कैसे? बट यहाँ पे तो 5 हम है ही नहीं हमारे पास। तो फिर E2 या V2 से शुरू करें। हाँ, E2 से तो V2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बिकॉज हमें
फेसर डायग्राम में आप कोई भी क्वांटिटी यदि एज्यूम कर रहे हैं कि आप किससे स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए या हमारे दिमाग में आना चाहिए कि उसके बाद हम क्या ड्रॉ कर पाएंगे, हमारे साथ उसके बाद हमारे पास किस चीज का रिलेशन है। ठीक है, यदि आपने E2 ड्रॉ किया तो आपको नहीं पता कि आप दूसरी क्वांटिटीज कौन सी ड्रॉ करेंगे। ठीक, बट यदि हमने V2 ड्रॉ किया तो हम एक चीज हमें मालूम है कि V2 और I2 के बीच में कुछ रिलेशन होगा, है ना? यस सर, राइट, और वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, विच टाइप ऑफ लोड वी हैव, लोड अप्लाइड है। ये हमारा कौन सा लोड है उसके ऊपर इन दोनों के बीच में कितना फेज डिफरेंस होगा, इट डिपेंड्स। अब यहाँ पर हमने कुछ भी डिफाइन नहीं कर रहे हैं कि हम किस टाइप का लोड है, तो कौन सा लोड लेंगे यदि नहीं पता है हमें, तो यदि हमने कुछ भी डिफाइन नहीं किया कौन सा लोड है तो कैसा लोड हम एज्यूम करेंगे, इंडक्टिव। इंडक्टिव। गुड, इंडक्टिव लोड एज्यूम करेंगे। सो वी स्टार्ट फ्रॉम दिस, राइट? सो वी टेक V2 एज अ रेफरेंस। ठीक है, फ्री हैंड बना है इसलिए लाइनों की सुंदरता पर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है, भावों पर ध्यान देना, शब्दों पर नहीं। तो V2, we draw the V2. Next, what we have? We have a I2 current, which is lagging behind the V2 with an angle phi 2, right? ये कुछ एंगल से लैग करेगा, 90 डिग्री से क्यों लैग नहीं कर रहा है, यहाँ पर प्योर इंडक्टिव नहीं है, because it's not pure inductive. We are not talking about the pure inductive. हमें वहां पर या तो बोला जाता है कि it's a pure inductive circuit, जब तक नहीं बोला जाएगा हम ये मान के चलेंगे it's inductive, and when it is inductive it is having some resistance and the inductance, that's why this angle is not 90 degree, it is having some angle, हमने जिसको मान लिया कि it is a phi 2. Okay, so now we draw the I2. With this V2 we draw a parallel line with the I2, that is I2 R equivalent to, जब हमने सर्किट पढ़ा था तब हमने क्या किया था, वहां पे I2 R2 बात की थी, लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या हो रहा है, I2 R equivalent to, यहाँ पर आप देखेंगे कौन सा रेजिस्टेंस है, टोटल R equivalent है, तो इट इज R equivalent to 90 degree of this is I2 JX2, this is I2 JX2, ये भी इक्विवेलेंट हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर इक्विवेलेंट है। एडिशन ऑफ दिस R equivalent and X equivalent will give us the Z equivalent. So it is I2 Z equivalent. This is your I2 Z equivalent. ठीक है, so when we add V2 plus I2 R equivalent to plus J I2 X equivalent to, what we will get? We will get the E2. अब इस नेटवर्क में देखें आप, this is the E2. Okay, when we have this E2, इसमें क्या किया हमने, V2 को ये दोनों ऐड करेंगे, ये ड्रॉप, तो क्या हो जाएगा, this thing you will get. KVL, कुछ KVL नेटवर्क याद है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ याद है आपको, है ना? तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ में क्या होता, यदि ये एक नेटवर्क है, ठीक है, इट्स ए क्लोज लूप, वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है E2, we have a resistance, inductance, and this is the load resistance, across this we are getting the voltage V2. So when we apply the KVL in this closed loop, तो क्या हो जाएगा, this E2 plus the drop across this resistance plus the drop across this plus the voltage this. अब यहाँ पर दो चीज हो सकती है, either you take this V2 or you take I2 ZL, दोनों चीजें ली जा सकती है ना, ये प्लस ये ड्रॉप इज इक्वल टू दिस ड्रॉप, ठीक है। तो अब हमारे पास I2 ZL नहीं था, दैट्स व्हाई व्हाट वी आर टेकिंग दिस V2. So this is the phasor diagram of the simplified equivalent circuit, refers towards the secondary side. Clear? सर आगे बढ़ूं? नो सर, हाँ बोलो। एक डाउट है सर, जो I2 हाँ, X बोलो। इक्विवेलेंट है, I2 X equivalent, yes.
ग्राफ में उसे लैग करना चाहिए ना आई टू आर इक्विवेलेंट से। आई टू आर इक्वलेंट से लैग करना चाहिए, क्यों? यस सर, क्योंकि क्यों करना चाहिए? आई टू आर इक्विवेलेंट का जो फेजर डायग्राम होगा उसमें आई टू और आर सेम फेज में रहेंगे। नहीं बेटा, मेरा ये देखिए, आई टू एक्स इक्वलेंट, सॉरी आई टू आर इक्वलेंट तो यहाँ पर होता है, ठीक है। यस सर। हम क्या लिखते हैं, जब हम लिखते हैं आर प्लस जे एक्स, ऐसा लिखते हैं, ठीक है। जब हम इम्पीडेंस लिखते हैं इस नेटवर्क का, ये इम्पीडेंस कितना हो जाएगा, आर प्लस जे एक्स। यस मैग्नीट्यूड के सर। फॉर्म में हम लिखेंगे तो इस वजह से आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर रूट ओवर, राइट। तब ये जे नहीं होगा, यस सर। है ना। हम्म। तो हमने क्या लिखा, आर प्लस जे एक्स। whenever you write multiply any quantity with this j, तो हमारी क्वांटिटी क्या थी, this is the quantity we have, i2 r2 j x2। मैं इक्विवेलेंट नहीं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग सिंपली 2, राइट। यस सर। सो व्हेन वी हैव i2 r2, और जब हम इस i2 r2 की क्वांटिटी को j के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 90 डिग्री से रोटेट हो जाती है। किसी भी क्वांटिटी को यदि आप j से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 90 डिग्री से रोटेट हो जाएगी। मैंने एक लिंक भेजा था, आप लोग को मिला होगा कि नहीं पता नहीं, जिसमें मैं, आप यदि उसमें जाएंगे तो आपको मेरा एक उसमें वीडियो मिलेगा जे ऑपरेटर करके, ठीक है। आप उसको देखिएगा, देन यू विल गेट द आइडिया कि किसी क्वांटिटी को यदि आप से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में यदि आप लिखते हैं, जे फॉर्म में जे ऑपरेटर यूज करते हैं तो वो कैसे रोटेट करती है। तो उसमें आपको इम्पीडेंसेस और द रिएक्टेंस और प्योर रेजिस्टिव और प्योर कैपेसिटिव जो सर्किट्स हैं उनके बारे में भी मिल जाएगा। एक बार उसको देखिएगा, फिर भी क्लियर नहीं होगा तो मेरे को बताइएगा, ओके। ओके सर। यस सर। वो लिंक आप लोग को मिला है कि नहीं मिला अभी तक? उस वीडियो का नहीं मालूम, लेकिन चैनल का लिंक है सर। चैनल का लिंक, दो उस तीन और चैनल में वीडियोस का था। जाएंगे ना, हाँ उस चैनल में जाएंगे तो जे ऑपरेटर एक अब वो है, उसमें आप जाके देखिएगा, ओके। यस सर। चलिए आगे बढ़ो। यस सर। अब आप लोग के लिए दिस इज द क्वेश्चन वी हैव on the basis of this equivalent circuit। क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं। द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ 200/2000 volt transformer is as shown in figure। इसमें बताया गया है कि which is referred towards the primary side। एक इक्विवेलेंट सर्किट है ट्रांसफार्मर का, कैसा ट्रांसफार्मर, 200/2000 वोल्ट का, ठीक है, जिसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किया गया है which is referred towards the primary side। The load on the secondary side is 600 plus J500 ohm। This is your क्या हो गया, ZL। Find secondary terminal voltage, B primary current and power factor, and C efficiency। And this is the circuit you have। दिख रहा है आपको सब कुछ? In this equivalent circuit, we have a 200 volt। This is your I1, this is 0.16, this is 0.7, this is your I2 dash, this is your V2 dash, this is 231, this is 400, this is your I0, these are the
quantities we have. Now draw the circuit. यह सॉल्व कर रहे हैं आप लोग? यस सर। अब इतनी देर से कौन आया भाई? क्या रोहित प्रताप? रोहित, यस रोहित। कैसे स्टार्ट किया आप लोगों ने? हर्ष, कैसे कर रहे हो? प्रखर, यस सर। कैसे कर रहे हो बेटा? कैसे स्टार्ट कर रहे हो? कहाँ से? सर एक लॉजिक वो आई नॉट वाले को वापस से हम लोग इसमें भी नेगलेक्ट कर देंगे, ये चलेगा ना सर? क्योंकि इसकी वैल्यूज चलो छोटी हो अच्छा, जाएंगी। बोलो, मान लिया। चलो चलो, अभी अभी के लिए मान लिया। चलिए फिर क्या करेंगे? फिर से मैं नॉर्मली केवीएल लगा दिया, जिसमें वी टू केवीएल डैश लगा को आई दिए। टू डैश इंटू जेड एल कर दिया। आई टू डैश इंटू जेड एल कर दिया। जेड एल दिया गया आपको? ये सर वो लोड की वैल्यू दी गई है ना, 600 प्लस जे 500 हाँ, दैट इज 600 प्लस जे 500। तो आपको क्या मिलेगा? वी टू डैश मिल जाएगा, यस सर। है ना? यस सर। आई टू कहाँ से आया? आई टू कहाँ से आया? सर केवीएल लगा रहा हूँ ना, तो उसमें एक ही क्वेश्चन, वी टू नहीं यूज कर रहा हूँ। आई सर वहाँ पे 200 वोल्ट लगा,
फिर नॉर्मली केवीएल, तो फिर I2 की वैल्यू 200 into 0.2255। नो 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 नो, सर V2 डैश इज इक्वल पहली टू गलती क्या कर रहे हैं? I0 वाले को V2 इग्नोर डैश नहीं इज करना इक्वल था। टू, एक गलती। दूसरी, पहले चलिए, पहले आप यदि V2 निकाल रहे हैं तो आप I0 को मान लीजिए कि आपने थोड़ी देर के लिए नेग्लेक्ट कर दिया, तो उससे पहले, हाँ आप कुछ, शालिनी ने बोला था कुछ, सर V2 डैश को I2 अपॉन I1 किसने इंटू बोला था? V2 कर देंगे क्या? नो, V2 डैश इज इक्वल टू I2 डैश इंटू ZL डैश तो होगा ही होगा, ठीक है, क्लियर है ये तो, यस सर। है ना? बट पहली गलती, दिस इज ZL डैश, ये कौन सा है यहाँ पर? ZL डैश है, और ये क्या है? ZL है। दिस इज द सर्किट विच इज रेफर्ड टुवर्ड्स द प्राइमरी साइड, प्राइमरी साइड। इसलिए यहाँ पर अंधेरे में रखा गया आपको, यहाँ पर ZL डैश नहीं लिखा गया, या लिख भी देता तो भी आपको पहले क्या करना है? यू कन्वर्ट दिस ZL टुवर्ड्स द प्राइमरी साइड, यू रेफर दिस ZL टुवर्ड्स द प्राइमरी साइड, so first you find ZL डैश, ठीक है, यस पहली सर। गलती। तो फर्स्ट यू फाइंड आउट द ZL डैश, ऑल ऑफ यू, कितना आया ZL डैश? सेवन 7.81 ओमेगा। सेवन पॉइंट एट वन ओमेगा जेड, क्या कर रहा है? ZL डैश कैसे निकालेगा बेटा? रेफर करना है अपने को, तो रेफर करने में क्या करते हैं? N1 बाई यस सर। N2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है अपने को, सर वैसे ही किया हूँ। भूल गए? ये देखो, ये क्या कर रहे थे हम लोग? R2 डैश को N1 बाई N2 स्क्वायर इंटू R2, सिमिलरली इसको करेंगे, यस सर। तो क्या हो जाएगा ये आपका 600 प्लस J500 इंटू N1 बाई N2 स्क्वायर मीन्स V1 बाई V2 Yes, sir. स्क्वायर, तो इट इज 6 प्लस J5, सर मैग्नीट्यूड में उसकी वैल्यू, तो आपका ZL कितना हो जाएगा? ZL डैश, हाँ, तो दिस इज योर 6 प्लस J5। J5, राइट, यस सर। दिस इज आवर ZL डैश, ठीक है। अब हमें क्या करना है? पहले हम I2 डैश निकालेंगे, ठीक, व्हाट इज I2 डैश? दिस इज दिस V, ओके,
इस v की क्वांटिटी कितनी है 200, सो वी टेक दिस v एज अ रेफरेंस, सो इट इज 200 एंगल 0 divided by this impedance plus this impedance. This will give you the I2 dash. So what is this? This is 6 plus j5 जो भी हमने कैलकुलेट किया, और प्लस 0.16 प्लस j 0.7. ठीक है, तो जब आप ये लिखेंगे देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस I2 डैश. ठीक है, यस सर. तो 200 एंगल 0 मींस दिस इज द पोलर फॉर्म. बी केयरफुल नाउ. पोलर रेक्टेंगुलर कन्वर्ट करना आता है अपने को, सॉल्व करना कि नहीं आता है? कैलकुलेटर से यूज करके आते हैं सर. यस सर. ओके, वैसे नहीं आता है. जब कैलकुलेटर छीन लिया जाए तो फिर क्या करेंगे? ये तो कैलकुलेटर सॉल्व नहीं कर पाएगा. आई थिंक इस इक्वेशन को कैलकुलेटर सॉल्व कर सकता है क्या? नहीं कर सकता. थोड़ा और सिंपलीफाई कर देंगे. सिंपलीफाई करना पड़ेगा. ठीक, Yes, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको इस ये जो क्वांटिटीज है 6 प्लस j5 प्लस 0.16 j 0.7, you convert this quantity into the polar form, then you can solve it easily. रेक्टेंगुलर टू पोलर और पोलर टू रेक्टेंगुलर जो मैंने j ऑपरेटर बताया उसी में मिल जाएगा आपको वीडियो में. ठीक है. यस सर. तो इसको व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस, क्या वैल्यू आ रही है आपकी? नहीं आ रही होगी, मैं बता देता हूँ. कहाँ है सर? ऐसा नहीं कर सकते क्या, डायरेक्ट मैग्नीट्यूड लेके कर दें हर चीज का? नहीं, मैग्नीट्यूड लेके जब हम कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज होती हैं तब हम मैग्नीट्यूड के फॉर्म में बात नहीं कर सकते हैं. ठीक है. यस सर. क्योंकि आगे हमें जरूरत पड़ेगी उन सब चीजों की. यहाँ पे देख रहे हैं आप, पावर फैक्टर भी कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है. तो जब पावर फैक्टर कैलकुलेट करना होगा तब आपको एंगल चाहिए ही पड़ेगा ना, तभी तो हम पावर फैक्टर की बात कर पाएंगे. ओके सर. तो इसका सॉल्यूशन आपको दिखाऊं. कहाँ है सॉल्यूशन 4 का? टाइम ओवर हो रहा है क्या? नेक्स्ट क्लास का टाइम आ रहा है? आईडी आ गई क्या? यस सर. ओके, जस्ट अ मिनट, बस खाली मैं इसको दिखा देता हूँ आपको. ये देखिए, V2 by V1 एक हमने वैल्यू निकाल ली थी. तो सबसे पहले लोड इम्पीडेंस रेफर टुवर्ड्स द प्राइमरी साइड, सो 6 प्लस j5 आ गया. ठीक है. देन दिस इज द I2 डैश, दिस इज V1 अपॉन Z इक्विवेलेंट 1 प्लस ZL. ZL 600, सॉरी 6 प्लस j5, और यहाँ पर Z इक्विवेलेंट 1 क्या था? 0.16 प्लस j 0.7. When you simplify this, you will get the value of the current I2 dash is 23.83 with angle of minus 42.78. ठीक. सर ये तो कैलकुलेटर से आ गया. आगे बेटा यार. Yes, देखो मैं तो क्या है ना कि पुराने जमाने का आदमी हूँ, तो मेरे को पता नहीं कैलकुलेटर से कैसे करते हैं. यदि आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है. ओके, मैं तो सिंपल अपने जो मैनुअली है ना वैसे ही करता हूँ. मेरे को कैलकुलेटर आता नहीं है अभी तक. ओके, सो द सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज दैट इज इक्वल टू V2 डैश इज इक्वल टू I2 डैश अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस j5 स्क्वायर. अब हम मैग्नीट्यूड में ले रहे हैं इसको. ठीक है, क्योंकि हमें वोल्टेज मैग्नीट्यूड में निकाला हमने. तो वी आर गेटिंग द वोल्ट वैल्यू ऑफ दिस V2 डैश इज 186.1. दिस इज द V2 डैश. हमें निकालना क्या है वहां पे क्वेश्चन में?
सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज निकालना है. V2 dash is not the secondary terminal voltage. This is the voltage which is referred towards the primary side. So to find out the secondary terminal voltage, we convert this V2 dash into V2. So when we refer this towards the secondary side, you will get the voltage V2 is equal to 1861 volt. Clear? Yes, sir. यहाँ तक क्लियर हो गया? Yes, चलिए, sir. ओके, आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ओके 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 ओके. सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसके लिए हम लोग बैठे हैं, दैट इज द अटेंडेंस. इसी के लिए बैठे ना कि नहीं? कुछ लोग तो इसी के लिए बैठे हैं. 11:10 पे आ रहे हैं भाई. जो लोग लेट आए हैं, प्लीज, इट्स माय रिक्वेस्ट, इट्स माय एडवाइस टू कम ऑन टाइम. ठीक है, चलिए अटेंडेंस बोलिए फटाफट. बोल रहे हैं कि लिख रहे हैं? टाइप कर देते हैं सर, लिख देते हैं. ओके. 10, 14, 2, 16, 15, 25, 25, 30. 30 के बाद अरे तेरा पास 30, 27, 5, 21, 3, 18, 24, 22, 28, 7. मैं बोलता जा रहा हूँ, कुछ छूट जाएगा तो बता देना ना. 13, 20, 9. ओके, 31 and 3. हो गए सब लोग? So today attendance is very good, and I request all of you to please join on time. और क्लासेस ज्वाइन करेंगे, कंटिन्यू रहेंगे, तभी हम आगे की बातें समझ पाएंगे. ओके, क्लियर है? थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू बेटा.